And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss National Education Policy 2020 Marathon 50 MCQ Series 1. 50 MCQ questions, and also I will explain some important concepts. It is useful for different principal exams and different teaching posts and CTT and the state teachers eligibility test, national eligibility test exam. So definitely for different educational exam, it is very useful. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Do not forget to subscribe my channel Asit Government Rule Guru. Join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. My Telegram channel, two Telegram channels. One is t.me/BAP82034 and second one t.me/ASIT2034. So join my Telegram channel so that you can get notification and you can get my videos. So now I am going to start National Education Policy 2020 Marathon 50 MCQ Series 1. You see the question number 1. It is given, consider the following statements regarding the vision of NEP 2020. Here 3 statements given. Okay. First one, the policy aims for India to have an education system by 2030 that is second to none. ये स्टेटमेंट गलत है, ये 2040 होना चाहिए. फर्स्ट स्टेटमेंट को थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं. इसमें क्लियरली मेंशन है कि द एम मस्ट बी फॉर इंडिया to have an education system by 2040 that is second to none. It means by 2040 India would be the number 1 educational hub across the world. Equitable access to the highest quality education, equitable access. It is it means it must be equally available for all. It means same thing. It is inclusive education. It means there is no separation of gifted students, supportive learners, कि डिसेबल, हैंडीकैप्ड, कोई सेपरेशन नहीं रहेगा. तो हाई क्वालिटी इक्विटेबल एक्सेस रिगार्डलेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड. रिगार्डलेस, कोई सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड को हम नहीं देखेंगे. ठीक है. तो ये था. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. तो द पॉलिसी एम्स फॉर इंडिया टू हैव एन एजुकेशनल सिस्टम बाय 2040 नॉट 2030 दैट इज सेकंड टू नॉन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. इट इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी इन इंडिया. ये करेक्ट है. ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 21st सेंचुरी का है. द पॉलिसी सिक्स टू अलाइन द एजुकेशन सिस्टम विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 SDG 4. ये भी करेक्ट है. तो इसमें 2 and 3 option B is the correct answer, right? SDG 4 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 4 के ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूँ. ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा, जो ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा में जो गोल 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसको हम अचीव करेंगे बाय 2030. उसमें क्या है? फर्स्ट वन, इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव मीन्स इट मीन्स देयर इज नो सेपरेशन ऑफ गिफ्टेड, स्लो लर्नर्स, की सपोर्टिव लर्नर्स, की डिसेबल, की हैंडीकैप्ड, कोई भी नहीं रहेगा. ऑल मस्ट बी इक्वली ट्रीटेड. इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन मस्ट बी अवेलेबल फॉर ऑल एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. सो ये जो 3 थिंग्स में बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, इसको हम अचीव करेंगे बाय 2030. ठीक है. ये मेन एजेंडा था ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट, जो ग्लोबल GED, उसका जो मेन एजेंडा. तो गोल 4 जो है SDG 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर आपको सपोज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो. आगे में हम
और कुछ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 regarding pedagogical shifts proposed in NEP 2020 which of the following is or are incorrect पूछा है। pedagogical shifts proposed in NEP, incorrect statement को डिटेक्ट करेंगे। pedagogy must move toward more content heavy curriculum to complete globally। more content नहीं है, less content होना चाहिए। more content नहीं, less content, conceptual understanding, ठीक है। तो मोर कंटेंट जो है वो गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पॉलिसी एम्फासाइजेस लर्निंग हाउ टू लर्न रादर देन जस्ट रोट एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स, ये करेक्ट है। एजुकेशन शुड फोकस सोली ऑन कॉग्निटिव कैपेसिटीज लाइक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एजुकेशन शुड फोकस सोली ऑन, ये गलत है, क्यों? ओनली कॉग्निटिव नहीं है, कॉग्निटिव है और उसमें सोशल, एथिकल, इमोशनल कैपेसिटीज, ठीक है, सब आएगा। कॉग्निटिव कैपेसिटीज, कॉग्निटिव में आपको जैसे आ गया क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव कैपेसिटीज में। देन सिमिलरली सोशल कैपेसिटीज, एथिकल कैपेसिटीज, इमोशनल कैपेसिटीज, ये सब आएगा। इसको सबको एम्फसाइज किया है, मगर थर्ड स्टेटमेंट में सोली ऑन कॉग्निटिव कैपेसिटीज, ये गलत है। तो उसमें इनकरेक्ट जो पूछा है 1 एंड 3, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी जो एनईपी 2020 वो लेस कंटेंट के ऊपर एम्फसाइज किया है, मगर मोर फोकस कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ टू बी क्रिएटिव एंड हाउ टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी, हाउ टू इनोवेट, हाउ टू अडॉप्ट, हाउ टू ऑब्जर्व न्यू मटेरियल इन नोवेल एंड चेंजिंग फील्ड्स। इस तरीके का चीज को एम्फसाइज कर रहा है। कंटेंट लेस रहेगा, मगर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आप जो भी कंटेंट रहेगा उसके ऊपर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, बच्चों का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और ज्यादातर वो फोकस किया, मोर फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ टू बी क्रिएटिव, मल्टी डिसिप्लिनरी। आपको वेराइटीज ऑफ फील्ड को इंटरकनेक्टेड कर दिया, वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट्स को इंटरकनेक्टेड कर दिया। तो वेराइटीज ऑफ फील्ड्स में स्टूडेंट्स नॉलेज एक्वायर करेंगे। तो इट मींस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नॉलेज, इनोवेट, हाउ टू अडॉप्ट, हाउ टू ऑब्जर्व न्यू मटेरियल, ये सबके ऊपर फोकस किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 what is considered the highest human goal in Indian thought? हाईएस्ट ह्यूमन गोल में देखिए वो ऑप्शंस दिया है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ग्लोबल लीडरशिप, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को ज्ञान बोलते हैं, विजडम प्रज्ञा एंड ट्रूथ सत्य, मास्टरिंग बिग डाटा एंड मशीन लर्निंग, अचीविंग यूनिवर्सल लिटरेसी बाय 2030। तो जो हाईएस्ट ह्यूमन गोल है ऑप्शन बी, 3 चीज के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया है, एक नॉलेज, एक विजडम एंड ट्रूथ। जो एंशिएंट टाइम में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम था, एंशिएंट टाइम में, उस टाइम में जैसे आपका तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला, वल्लभी, ये जो सेंटर्स था उसमें जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, तो उनका जो थिंकिंग इसी के ऊपर था, वो नॉलेज के ऊपर एम्फसाइज करते थे, विजडम एंड ट्रूथ। तो ये एंशिएंट सिस्टम के साथ इसको इंटरकनेक्ट किया गया है। अभी वही सिस्टम है, जो द स्टूडेंट्स मस्ट हैव नॉलेज, दे मस्ट हैव विजडम एंड देन दे मस्ट टेल द ट्रूथ, दे मस्ट बिलीव ऑन ट्रूथ। तो यही है हाईएस्ट ह्यूमन गोल, यही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो आया है वो एंशिएंट और जो एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम था उससे आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द एनईपी 2020 identifies the teacher as the center of fundamental reforms. To empower them, the policy emphasizes which of the following? Okay, अभी जो सेंटर ऑफ लर्निंग बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स में टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको एम्पायर करने के लिए क्या पॉलिसी में क्या है? लाइवलीहुड एंड डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी, क्वालिटी कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव।
ये 4 ऑप्शंस दिया है, लाइवलीहुड एंड डिग्निटी, रेस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी, क्वालिटी कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उनको एम्पायर करने के लिए उनको लाइवलीहुड एंड डिग्निटी, वो लाइवलीहुड मेनली उनका जो सैलरी, उनको मिनिमम एक सैलरी मिलना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, तो प्राइवेट डिपार्टमेंट में टीचर्स को मिनिमम सैलरी मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन मेंटेन देयर लाइवलीहुड प्रॉपर्ली। ऑल्सो दे मस्ट मेंटेन डिग्निफाइड लाइफ इन द सोसाइटी, दे मस्ट गेट रेस्पेक्ट एंड दे मस्ट हैव ऑटोनॉमी। ओके, तो ऑटोनॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ऐड किया, दे मस्ट हैव ऑटोनॉमी। इट मींस दे कैन क्रिएट देयर ओन आइडियाज, it means they can create some new things so that easily they can groom, it means the students। क्वालिटी कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी रहेगा, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगा, क्योंकि एक मिनिमम बेंचमार्क जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेनली टीचर्स। तो उनका टीचिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और कैसे स्टूडेंट्स का क्रिटिकल थिंकिंग की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कैसे उनका इनोवेटिव माइंड होगा, ठीक है। तो ये सब चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब आएगा, लाइवलीहुड, डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी, क्वालिटी कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सब आ जाएगा। तो पॉलिसी एम्फासाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, उनको एम्पायर करने के लिए ये सब पॉइंट्स को एम्फासाइज किया है एनईपी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding the vision of NEP 2020। करेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे। द पॉलिसी एम्स फॉर इंडिया टू हैव एन एजुकेशनल सिस्टम बाय 2040 दैट इज सेकंड टू नॉन। इसको मैं बोल चुका हूं कि बाय 2040 इंडिया वुड बी द नंबर 1 एजुकेशन हब अक्रॉस द ग्लोब, और हाईएस्ट क्वालिटी एंड इक्विटेबल एजुकेशन शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो डिसएडवांटेज है, जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप है, उनको अच्छा एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, मगर अक्रॉस द ग्लोब 2000 बाय 2040 इंडिया वुड बी द नंबर 1 एजुकेशन हब, और उसमें मेनली फोकस किया है कि इक्विटेबल एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन। Okay, each and every student get highest quality education for all the learners। उसमें सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड को नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन इज सीन एज द की टू इंडियाज लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज, ये भी करेक्ट है। द पॉलिसी सिक्स टू अचीव इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये तीनों एक्चुअली करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसमें था, मेरा एक सेंटेंस आप सुन लीजिए। द एम मस्ट बी फॉर इंडिया टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040 दैट इज सेकंड टू नॉन। दैट इज सेकंड टू नॉन मींस इंडिया वुड बी द नंबर 1 एजुकेशनल हब। उसमें क्या रहेगा, विथ इक्विटेबल एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। वहां पर आप सभी ईच एंड एवरी स्टूडेंट, चाहे वो जितना खराब सोशल बैकग्राउंड से आ जाए, कि कोई उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मगर उसको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा ही मिलेगा। इट इज फॉर ऑल लर्नर्स, नॉट ओनली इंडिया, दो स्टूडेंट्स दे आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो, they can get also high quality educational facilities in India। For that reason India would be the number 1 educational hub by 2040। तो तीनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, by which year does the NEP 2020 aim for India to have an education system that is second to none by 2040? Option D is the correct answer। Question number 7, according to the policy, what is the best way forward for maximizing India's rich talents and resources? According to the national education policy, what is the best way forward for maximizing India's rich talents and resources? Increasing the number of unskilled jobs, focusing solely on STEM subjects, universal high quality education, reducing the focus on humanities। तो मेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन। ओके, सेम थिंग जे बाय 2040 इंडियन एजुकेशन सिस्टम दैट इज सेकंड टू नॉन, इट मींस इंडिया वुड बी द नंबर 1
Okay, country related to the education. So option C is the correct answer. Question number 7. Question number 8. With reference to the National Education Policy 2020, consider the following statements. Correct statement को हम डिटेक्ट करेंगे. Question number 8. Education is viewed as fundamental for achieving full human potential and national development. NEP 2020 aims to align India's educational system with Sustainable Development Goal 4. SDG 4 focuses on ensuring inclusive and equitable quality education by 2040. जो तीनों स्टेटमेंट दिया है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. एजुकेशन इज व्यूड एज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल एंड नेशनल डेवलपमेंट, करेक्ट है. NEP 2020 aims to align India's education system with Sustainable Development Goal 4, ये भी करेक्ट है. SDG 4 focuses on ensuring inclusive and equitable quality education by 2040. It is 2030. It is 2030 एक्चुअली. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है. करेक्ट पूछा है 1 and 2. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि SDG 4 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, जो ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा है, गोल 4, तो उसको हम अचीव करेंगे बाय 2030. इंश्योर करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ओके, एंड थर्ड वन था, मैं बोला था प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. ये जो तीन चीज है हम उसको अचीव करेंगे बाय 2030. जो गोल 4 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को हम अचीव करेंगे बाय 2030. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विजन ऑफ NEP 2020. करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे. विजन, इंडिया एम्स टू हैव वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बाय 2040. ये इसको मैं बोल चुका हूं. Access to quality education should be ensured regardless of social or economic background. ये करेक्ट है. NEP 2020 is India's first education policy of the 21st century. ये भी करेक्ट है. तीनों करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, तो मैं बोला था बाय 2040 इंडिया वुड बी द नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें हाई क्वालिटी एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर all learners with equitable access to highest quality education for all learners. और उसमें हम सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप है, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप है, अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है. अभी भी वो जो चाइल्ड बिलोंग्स टू एक्चुअली दीज ग्रुप्स, एक्चुअली दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज, अभी भी है. मगर वो नहीं रहेगा बाय 2040. जो भी लर्नर्स, चाहे ऑल लर्नर्स, वो नहीं बोला है ओनली इंडिया, बिकॉज अक्रॉस ग्लोब में हम नंबर 1 कंट्री रहेंगे एजुकेशन सिस्टम में. तो जो पुअर कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पर इंडिया में, उनको भी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा. ओके, और उसमें भी इक्विटी को भी एम्फसाइज किया गया है, और इसमें हम सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. विथ रेफरेंस टू टीचर्स इन NEP 2020, कंसिडर, ये टीचर्स रिलेटेड है. टीचर्स आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, करेक्ट है. NEP डिस्करेजेस ऑटोनॉमी फॉर टीचर्स टू एंश्योर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ये गलत है. NEP एनकरेजेस ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मीन्स एक्चुअली जो टीचर्स का वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, वो खुद का जो आइडियाज है वो डेवलप करेंगे, जो न्यू थिंग्स वो क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए. उनके लिए कोई बैरियर्स नहीं रहेगा. ओके, उनके लिए ऑटोनॉमी स्टेटस रहेगा. ठीक है, दे कैन डू समथिंग बाय देमसेल्व्स, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, दे कैन क्रिएट समथिंग फॉर द चिल्ड्रन. ठीक है, तो वो डिस्करेज नहीं, एनकरेज ऑटोनॉमी. द पॉलिसी एम्फसाइजेस डिग्निटी, रेस्पेक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर टीचर्स, ये भी करेक्ट है. टीचर्स मेंटेन डिग्निफाइड लाइफ इन द सोसाइटी, दे गेट रेस्पेक्ट. अकाउंटेबिलिटी भी रहेगा. अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या है, रिजल्ट भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम NEP होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, बोथ इट मीन्स स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है. और टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीचर इज द हार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम.
टीचर प्ले द सेंटर रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उनको ऑटोनॉमी स्टेटस दे दिया गया कि आप कोई भी अच्छा चीज क्रिएट कर सकते हो। अभी बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप अच्छा चीज क्रिएट कर सकते हो और उसमें डाल सकते हो, जैसे दीक्षा पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है, ठीक है। तो इसलिए उनको ऑटोनॉमी स्टेटस दे दिया गया। आप न्यू चीज क्रिएट करो, आपको उसके हिसाब से आपको प्रेज मिलेगा और उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा, ठीक है, और आपको अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो उसमें जो है इनकरेक्ट पूछा था, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, NEP 2020 emphasizes development of which of the following capacities? Development of which of the following capacities? Only cognitive, social, ethical and emotional capacities, only vocational capacities, only moral values. Option B जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा वो कॉग्निटिव कैपेसिटीज में होगा, सोशल कैपेसिटीज में होगा, एथिकल कैपेसिटीज में होगा, इमोशनल कैपेसिटीज में होगा। कॉग्निटिव में जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब आता है। सोशल में उसका जो मैनर्स है, उसका बिहेवियर है, उसका जो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल है, उसका फिजिकल अपीयरेंस है, ये सब आ जाएगा। एथिकल में वो एक्चुअली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उसको वो रेस्पेक्ट करेगा, इसमें एथिकल यही है। इमोशनल कैपेसिटीज जो उसके वो क्या इमोशनल कैपेसिटीज क्या है, वो कभी भी डिप्रेस नहीं होगा, ठीक है। उसके पास वो उसको ऐसे हम उसका कैरियर को बिल्ड अप करेंगे कि कोई भी ऑड सिचुएशन को, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को वो सरपास करेगा। तो सभी के ऊपर एम्फसाइज किया गया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इन ancient इंडियन फिलोसफी, उसमें जो एम है स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्विजिशन ऑफ डिग्रीज, रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो एंशिएंट सिस्टम था उसमें तक्षशिला था, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब था। तो उनका जो मेन थीम था वो था कि कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था उनका सिस्टम में। क्या था? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज था, ओनली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हम ये नहीं करेंगे, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज था, बियॉन्ड ऑफ स्कूलिंग था, और थर्ड वन था कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ। कंप्लीट रियलाइज, वो खुद को रियलाइज करना है, वो खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। the child actually think about himself, the child actually it means know him properly, ओके उसका क्या ड्रॉबैक्स है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो खुद डिटेक्ट करेगा, खुद को रियलाइज करेगा कि मेरा लेवल क्या है, मेरे पास कितना नॉलेज है, क्या जो बियॉन्ड ऑफ द स्कूल मेरा मैं कितना नया चीज क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द, वो फ्री था, उसके ऊपर ऐसा कुछ बर्डन एक्चुअली कोई इंपोज नहीं किया जाता था, वो खुद लिबरेट था, खुद फ्री था, उसको वो सोचता था बहुत एंशिएंट टाइम में। उसी को अभी एनईपी में उसको लिंक किया गया। तो जो उस समय जो सिस्टम था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, और उस समय बहुत कुछ स्कॉलर्स थे जैसे चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बराहमीर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणी दत्त, माधव, पाणिनि, पातंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरादेव, मैत्री, गार्गी, ये सब थे, बहुत कुछ स्कॉलर्स थे। तो उनका मेन जो फोकस था नॉलेज कैसे हम एक्वायर करेंगे हमारा चिल्ड्रन। सेकंड था बियॉन्ड ऑफ द स्कूल, जो हम बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स अभी बोलते हैं। तो ओनली स्कूल में कन्फाइन होकर नहीं रहेंगे, अभी हमको बाहर बहुत कुछ चीज को कलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे जो चाहे इनोवेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, वो सभी में आपको नॉलेज एक्वायर करना है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट था रियलाइजेशन, द स्टूडेंट्स दे मस्ट रियलाइज देमसेल्व्स, दे मस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्व्स, they must detect their actually strength and weakness, and another one liberation of the self, वो फ्री थे, उनके ऊपर ऐसा कुछ बर्डन, कुछ स्ट्रेस
कि कोई उनको उनके ऊपर सभी समय उनका माइंड को कंट्रोल करके रखता था, ऐसा कुछ नहीं था, बोलिए वही फ्री थे। तो अभी वही है, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया फिलोसफी वाज रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 13. Which of the following concepts are highlighted in NEP 2020 as central to Indian thought? Central to Indian thought. धर्म कर्म and मुख्य, ज्ञान प्रज्ञा सत्य, अर्थ काम मुख्य, योगा भक्ति कर्म। तो एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो मेन थिंग था, जो हाईएस्ट ह्यूमन गोल था, हाईएस्ट ह्यूमन गोल, वो ऑप्शन बी ज्ञान नॉलेज, प्रज्ञा विजडम एंड सत्य ट्रूथ मैं बोल चुका हूं। तो हाईएस्ट ह्यूमन गोल यही है, उसको भी अभी लिंक कर दिया गया। हमारे स्टूडेंट्स के पास नॉलेज होना चाहिए, उनके पास विजडम होना चाहिए, और दे मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following ancient Indian institutions were known for multidisciplinary teaching and research? तक्षशिला नालंदा, विक्रमशिला वल्लभी, तक्षशिला नालंदा, विक्रमशिला वल्लभी, नालंदा एंड उज्जैन। ऑप्शन सी, तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला एंड वल्लभी। ओके, ये सब एंशिएंट इंडियन इंस्टीट्यूशंस, अभी भी उनका नेम एंड फेम है, ठीक है। अभी भी आप देखिए नालंदा, अभी भी उसका जो रूइंड पार्ट आप जाकर देख सकते हैं। ये तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च के ऊपर फोकस कर रहे थे एंशिएंट टाइम में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अट्रैक्टेड स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम। तो उसमें था, एंशिएंट इंडिया में था बेसिकली जो मैं अभी बताया, जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, वो किस तरीके से स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते थे। ओनली विद इन इंडिया, ओनली नेबरिंग कंट्रीज, अक्रॉस बैकग्राउंड्स एंड कंट्रीज, ओनली रॉयल फैमिलीज। ऑप्शन सी, अक्रॉस बैकग्राउंड्स एंड कंट्रीज, वो क्लियरली मेंशन है। आप देखिए, ये जो तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला वल्लभी सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग। उनका जो मल्टीडिसिप्लिनरी, इट मींस वेरियस सब्जेक्ट्स वो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो सेम टाइम में साइमल्टेनियसली द स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड रिसर्च। एंड जो स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स को वो होस्ट कर रहा था फ्रॉम अक्रॉस बैकग्राउंड्स एंड कंट्रीज। बहुत कुछ स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को वो होस्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसमें अक्रॉस बैकग्राउंड्स एंड कंट्रीज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. Who among the following is associated with ancient Indian contributions to medical science and surgery? मेडिकल साइंस एंड सर्जरी, जो प्लास्टिक सर्जरी का जब बात आता है तब हम देखेंगे सुश्रुत, बहुत चरक एंड सुश्रुत, मगर सुश्रुत बहुत फेमस है क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी उनका जो था, मेडिसिन, वो कंट्रीब्यूशंस टू मेडिकल साइंस, सुश्रुत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हिच एंशिएंट इंडियन स्कॉलर इज बेस्ट नोन फॉर कंट्रीब्यूशंस टू ग्रामर। लिंग्विस्टिक ग्रामर का बात आएगा तब पाणिनि का बात आ जाएगा। जैसे योगा पतंजलि, तो ग्रामर का बात आएगा, ग्रामर लिंग्विस्टिक में पाणिनि, ठीक है। वो एक एंशिएंट इंडियन स्कॉलर थे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, आर्यभट्ट, बराहमीर एंड भास्कराचार्य मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस मेनली इन द फील्ड ऑफ। ये तीनों तो बहुत कॉमन है, आर्यभट्ट, बराहमीर एंड भास्कराचार्य, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 19. NEP 2020 emphasizes that India's ancient knowledge system should be preserved only as historical records, replaced with modern education, nurtured, preserved, researched and enhanced, confined to cultural studies. ऑप्शन सी, जो एंशिएंट, जो इंडिया जो एंशिएंट नॉलेज सिस्टम था, अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम देखिए, पीएम श्री जो स्कूल से, इसमें आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या है, हम हमारा जो एंशिएंट नॉलेज को हम कैसे नर्चर करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे, एनहांस करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, नॉर्चर्ड, प्रिजर्व, रिसर्च एंड एनहांस्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following fields is not mentioned as an area of ancient Indian contribution in the passage? इसमें आप देखिए जो ancient Indian contribution था उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, योगा एंड फाइन आर्ट्स। सब कुछ था, न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं था। ऑप्शन सी ये नहीं था। शिप बिल्डिंग नेविगेशन था, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर था, योगा एंड फाइन आर्ट्स था। जो स्कॉलर्स थे, जो उनका फील्ड था, जो डिफरेंट स्कॉलर्स में बताया, जैसे ब्रह्मगुप्त है, भास्कराचार्य है, बराहमिर है, आर्यभट्ट है, चाणक्य है, चक्रपाणि दत्त है, माधव, पाणिनि, पातंजलि, नागार्जुन, तो उनका जो फील्ड था मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, मेडिकल साइंस एंड सर्जरी, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, योगा, फाइन आर्ट्स, चेस एंड मोर, मगर वो न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द रिफरेंस टू स्कॉलर्स लाइक गार्गी एंड मैत्रेयी, ये भी दो स्कॉलर्स है, एंशिएंट स्कॉलर्स, इन एनईपी 2020 हाइलाइट्स। वो क्या हाईलाइट किए थे गार्गी एंड मैत्रेयी, जो एंशिएंट स्कॉलर? फीमेल पार्टिसिपेशन इन एंशिएंट इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, रॉयल पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशन, रिलीजियस डोमिनेंस इन एजुकेशन, डिक्लाइन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। एक्चुअली ऑप्शन ए करेक्ट था। जो गार्गी एंड मैत्रेयी जो एंशिएंट स्कॉलर्स थे वो ज्यादा फोकस किए थे, एम्फसाइज किए थे फीमेल पार्टिसिपेशन इन एंशिएंट इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस। कैसे इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस में फीमेल का पार्टिसिपेशन रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द मेंशन ऑफ डाइवर्स स्कॉलर्स इन एनईपी 2020 प्राइमरीली एम्स टू एम्फसाइज। जो डाइवर्स कलर्स में भी बताया, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटालर्जी, फाइन आर्ट, योगा, लिंग्विस्टिक एंड ग्रामर, फिलोसॉफी, तो बहुत एरियाज में जो एंशिएंट स्कॉलर्स का जो रिसर्च था नहीं, तो उसमें द मेंशन ऑफ डाइवर्स कलर्स इन एनईपी 2020 प्राइमरीली एम्स टू एम्फसाइज इंडियाज एंशिएंट पॉलिटिकल डोमिनेंस, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, superiority of religious education, colonial influence on education। ऑप्शन बी, multidisciplinary nature of ancient Indian education। अभी इसलिए एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज किया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन फैसिलिटीज। ओके, तो अभी एक आप देखिए मेरू, ये जो एनईपी में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज। ओके, तो जो सब्जेक्ट्स बहुत इंटरकनेक्टेड रहेगा, सब्जेक्ट्स में इंटीग्रिटी रहेगा, इंटरकनेक्शन रहेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, और द सेम टाइम द स्टूडेंट्स एक्चुअली दे कैन गेट नॉलेज इन वेरियस फील्ड्स, इन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो यही था। तो मैं बताया था एंशिएंट सिस्टम में तीन चीज के ऊपर वो एम्फसाइज किए थे, एक एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, सेकेंड था मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है, और जो थर्ड था बहुत इंपॉर्टेंट था कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ। ठीक है, तो सब्जेक्टिव जैसे अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएगा मेरा, आप डिस्कशन सुन लो, वो भी आप अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। तो ऑप्शन बी यहां पर इज द आंसर। अभी देखेंगे एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स एंड देयर फील्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहा है। जो एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स उनका क्या क्या फील्ड था। फर्स्ट आप चाणक्य को देखिए, उसमें उनका था मेडिसिन, आयुर्वेद, फेमस था चाणक्य संहिता। ठीक है, फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदिक इंटरनल मेडिसिन, राइट। तो ठीक है, इसमें देखिए चाणक्य संहिता, फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदिक इंटरनल मेडिसिन, तो उनका जो मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन, और फेमस उनका जो बुक था चाणक्य संहिता, उसको देखिए। सुश्रुत जो थे मेडिसिन एंड सर्जरी, सुश्रुत संहिता, पायोनियर ऑफ सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया। नेक्स्ट देख लीजिए, आर्यभट्ट बहुत फेमस है, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी उनका फील्ड था। ठीक है, जो वो फेमस थे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई जो वैल्यू है, रोटेशन ऑफ द अर्थ।
ओके, वो फेमस थे। जीरो, अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, और उनका फील्ड था मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। बराहमीरो वो भी फेमस है, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, उनका जो फेमस बुक था बृहद समिथा, उसमें क्लियरली था एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी एंड आर्किटेक्चर, तीनों चीज था बृहद संहिता में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भास्कराचार्य, ये भी बहुत फेमस है, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी उनका फील्ड था। फेमस थे लीलावती एंड बीजगणित, जो अलजेब्रा एंड कैलकुलस कॉन्सेप्ट जो है वो फेमस थे। ठीक है, ये एक देखिए, ये है कैलकुलस पार्ट था और बीजगणित, लीलावती एंड बीजगणित, अलजेब्रा एंड कैलकुलस कॉन्सेप्ट। फिर ब्रह्मगुप्ता, ये भी बहुत पॉपुलर स्कॉलर थे, मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी, और उनका जो पॉपुलर कंट्रीब्यूशन था जीरो, रोल ऑफ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, और उनका उसमें वो बहुत फेमस थे, ब्रह्म सुप्त सिद्धांत, जीरो, नेगेटिव नंबर्स, ब्रह्म सुप्त सिद्धांत, ये तीनों चीज उनका फेमस कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट वन आप देखिए चाणक्य, कौटिल्य, ये तो बहुत फेमस है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट, उनका फेमस अर्थशास्त्र। ठीक है, चक्रपाणी दत्त, ये भी एक एंशिएंट स्कॉलर थे, वो भी उनका फील्ड था मेडिसिन, आयुर्वेद, तो वो फेमस, उनका जो कंट्रीब्यूशन था कमेंटरीज ऑन चरक संहिता और चक्रदत्त। ठीक है, दोनों चीज फेमस कंट्रीब्यूशन को देखिए। नेक्स्ट वन माधव, ओके, माधव जो थे मैथमेटिशियन थे, वो फाउंडर ऑफ केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, और उनका जो कंट्रीब्यूशन था इन्फिनिट सीरीज और अर्ली कैलकुलस के ऊपर उनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, पानिनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, अभी एक क्वेश्चन उसके उनके ऊपर था ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक, और उनका जो फेमस जो संस्कृत ग्रामर था अष्टाध्यायी, संस्कृत ग्रामर था अष्टाध्यायी, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट वन पातंजलि नागार्जुन के बारे में बताएंगे। पातंजलि योगा एंड ग्रामर, योगा के लिए तो बहुत फेमस है, योगा सूत्रज एंड महाभाष्य, ओके, उनका जो कंट्रीब्यूशन था। और नागार्जुन ऑफ फिलोसॉफी एंड मेटालर्जी, मेटालर्जी का बात आएगा तो एंशिएंट स्कॉलर में नागार्जुन आएंगे। फेमस फॉर माध्यमक फिलोसॉफी, ठीक है, कंट्रीब्यूशंस टू अल्केमी एंड मेटालर्जी, उनका मेन था मेटालर्जी, नागार्जुन मेटालर्जी। नेक्स्ट गौतम, ये लॉजिक फिलोसॉफी में फेमस है, तो लॉजिक एंड फिलोसॉफी उनका फील्ड था, और फेमस फॉर न्याय सूत्र, इंडियन लॉजिक सिस्टम का बात आएगा तो गौतम को हम रिमेंबर करेंगे। फिर पिंगला, पिंगला भी मैथमेटिशियन एंड प्रोसोडी, उनका जो फेमस था बाइनरी नंबर्स था, पिंगला बाइनरी नंबर सिस्टम एंड कॉम्बिनेट्रिक्स, ओके। इसमें भी याद रखिए उनका एक शास्त्र था, बुक था चंदास शास्त्र, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिशियन, बाइनरी नंबर्स उनका कंट्रीब्यूशन था, और जो कॉम्बिनेशन था, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो इसको यहां पर दिया है कॉम्बिनेटोरिक्स, ओके, उनका फेमस कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट वन शंकर देव, ये एक आसामीज स्कॉलर थे, फिलोसॉफी, लिटरेचर एंड आर्ट्स, शंकर देव। भक्ति मूवमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन था, आसामीज लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन था, और उनका एक ड्रामा था अंकिया नाट, ठीक है। और नेक्स्ट वन मैत्रेयी, गार्गी के ऊपर भी बताया था, मैत्रेयी एक उनका फील्ड था फिलोसॉफी, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था उपनिषदिक फिलोसॉफी, डिस्कशन ऑन सेल्फ एंड नॉलेज, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन गार्गी, ये भी उनका जो फील्ड था फिलोसॉफी था, फेमस थे वैदिक फिलोसॉफी, डिबेट्स इन बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, तो गार्गी। और लास्ट वन है थिरुवल्लुवर, थिरुवल्लुवर, उनका जो फील्ड था एथिक्स, फिलोसॉफी एंड लिटरेचर, ठीक है, फेमस फॉर थिरुकुरल, एथिक्स, मोरालिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। ये जो 18 एंशिएंट स्कॉलर्स इसमें क्लियरली मेंशन है, आप एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम देखिए एनईपी में, उसमें क्लियरली यही 18 स्कॉलर्स को एम्फसाइज किया गया है, ठीक है, और उनका फील्ड को, तो मैं उसको उनका फील्ड में क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था वो भी डिस्कस किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी उसके ऊपर जैसे लीलावती एंड बीजगणित आर वर्क्स ऑफ ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, माधव। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए, तो इसमें भास्कराचार्य, ठीक है,
लीलावती एंड बीजगणित, लीलावती जो है वो कैलकुलस पार्ट और बीजगणित, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 23, क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, रूल्स रिलेटिंग टू जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स वी आर फर्स्ट सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन बाय, किस एंशिएंट स्कॉलर का कंट्रीब्यूशन था? आप देखिए ब्रह्मगुप्त, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स जो कंट्रीब्यूशन था ब्रह्मगुप्त का था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी रिलेटेड में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच कलर इज एसोसिएटेड विथ बाइनरी नंबर्स एंड कॉम्बिनेटोरिक्स, अभी मैं बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है बी है, पिंगला है उनका, वो भी एक मैथमेटिशियन थे, उनका कंट्रीब्यूशन बाइनरी नंबर्स के ऊपर था और कॉम्बिनेटोरिक्स के ऊपर था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी 2020। अभी प्रिंसिपल्स के ऊपर आ गया, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, द पॉलिसी मैंडेट्स ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स टू एंश्योर स्पेशलाइजेशन। कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है उसमें। आप प्रिंसिपल्स को देखिए, इसमें नो हार्ड सेपरेशन, जैसे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, ये जो सेपरेट था अभी वो सेपरेशन नहीं रहेगा। ठीक है, देयर इज नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, ऐसा कोई इट मीन सेग्रीगेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN इज accorded the highest priority to be achieved by all students by grade 3, ये करेक्ट है। जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, जो बेसिकली कॉमन जो न्यूमेरिकल्स है कि जो लिटरेरी पार्ट, जो फाउंडेशनल लिटरेरी पार्ट है, सो ऑल द स्टूडेंट्स दे मस्ट एक्वायर बाय ग्रेड 3, ये करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रपोज्ड इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट बट टाइट, ये भी ठीक है। तो लाइट बट टाइट के ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, तो टाइट का बात जब आएगा तब हम देखेंगे इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम थ्रू ऑडिट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर। ऑडिट तो होता है, ऑडिट में क्लियरली मेंशन होगा जो भी रिसोर्स है, जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया है कि नहीं। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्स में टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेस में इंटीग्रिटी रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा और उसको एफिशिएंटली रिसोर्स को मोबिलाइज किया जाएगा, जिसमें एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और एक बच्चों को सेफ एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा। और उसमें टाइट पॉलिसी में क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज जैसे आपका एनकरेजिंग इनोवेशन, ठीक है, तो एनकरेजिंग इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज में ऑटोनॉमी, गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट, तीन चीज के ऊपर एम्फसाइज किया गया है। तो लाइट रहेगा बट टाइट फ्रेमवर्क रहेगा, टाइट फ्रेमवर्क रहेगा फाइनेंशियल रिसोर्सेस में, ऑडिट होगा और पब्लिक डिस्क्लोजर, जो भी रिसोर्स एजुकेशन सिस्टम में जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली एनईपी यहां पर स्कूल सिस्टम को देखेंगे, हायर एजुकेशन को छोड़ दीजिए। स्कूल सिस्टम में जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो पब्लिक को डिस्क्लोजर करना चाहिए, तो पब्लिक का फेथ होना चाहिए, हाँ जो भी रिसोर्स मोबिलाइज हुआ एफिशिएंटली हुआ और प्रॉपरली हुआ, ऑप्टिमली यूटिलाइज हुआ, उसमें कुछ फ्रॉड और कुछ मैनिपुलेशन नहीं हुआ। ठीक है, और टाइट पॉलिसी में आएगा कि इनोवेशन को एनकरेज किया जाएगा और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज जो आएगा ये तीनों चीज के ऊपर ऑटोनॉमी दिया जाएगा टीचर्स को, ओके, फैकल्टीज को, गुड गवर्नेंस रहेगा, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज रहेगा बहुत अच्छा रहेगा और एक एम्पावरमेंट रहेगा। ठीक है, कैसे हम इट मींस डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम एम्पावर करेंगे, ठीक है, उनका कैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जो बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, ओके, किस तरीका का डिवाइसेस चाहिए उनको, तो वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो उसमें क्या होगा, वो इजीली दे कैन एक्सेस एवरीथिंग, दे कैन डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज एवरीथिंग, सो दैट इजीली दे एक्वायर नॉलेज। तो उसमें फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, एजुकेशन इज व्यूड एज ए प्राइवेट कमोडिटी टू बी ड्राइवन प्राइमरली बाय मार्केट प्रोसेस, ये गलत है
क्योंकि क्लियरली प्रिंसिपल्स में मेंशन है कि एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस, एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस, access to quality education must be considered a basic right of every child. एवरी चाइल्ड का बेसिक राइट है कि उसको क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस होगा, तो एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस। तो उसमें मैं क्लियरली बताया फर्स्ट एंड फोर्थ गलत है, तो उसमें देखिए स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26, राइट। 27 में देखेंगे, यहां पर भी करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। रिगार्डिंग असेसमेंट एंड पेडागोजी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलाइन विथ एनईपी 2020? देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम समेटिव असेसमेंट टू रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो समेटिव असेसमेंट होता था जैसे हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन, 2 एग्जामिनेशन होता था, उसको डिस्कार्ड कर दिया एनईपी ने। फॉर्मेटिव असेसमेंट माने रेगुलर असेसमेंट होता रहेगा, आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर असेसमेंट होता रहेगा। जैसे अभी सीबीएसई बोर्ड में 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है, और हायर क्लास में 11 12 में उसको यूनिट टेस्ट हम बोलते हैं। तो लास्ट में हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन होता है, मगर रेगुलरली असेसमेंट जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट को एम्फसाइज किया गया है। द फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, द पॉलिसी एनकरेजेस लर्निंग फॉर एग्जाम्स टू मेंटेन हाई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। लर्निंग फॉर एग्जाम्स ये गलत है, हम जो लर्न करेंगे ओनली एग्जाम के लिए लर्न करेंगे, ये गलत है। ठीक है, नो ये गलत है, वो इनकरेक्ट है। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज आर प्रमोटेड इन टीचिंग एंड लर्निंग, ये करेक्ट है। जैसे मल्टी लैंग्वेज को एम्फसाइज किया गया और पावर ऑफ लैंग्वेज दोनों को एम्फसाइज किया गया, कैसे प्रमोट किया जाएगा उसको एम्फसाइज किया गया एनईपी में। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज एनकरेज स्पेशली टू रिमूव लैंग्वेज बैरियर्स एंड इंक्रीज एक्सेस फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स, ये करेक्ट है। कैसे हम एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, जो लैंग्वेज बैरियर्स एक्चुअली रिमूव होगा और दिव्यांग स्टूडेंट्स एक्चुअली इजीली एक्सेस कर पाएंगे, इंक्रीज एक्सेस फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। अभी जो लैंग्वेज बैरियर्स है उसको रिमूव किया जाएगा जब हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। आपको भी टेक्नोलॉजी है, आप जैसे कोई भी लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश को कन्नड़ में, इंग्लिश को तमिल में, कि तमिल टू इंग्लिश हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है उनके लिए भी टेक्नोलॉजी, थ्रू प्रॉपर टेक्नोलॉजी ऑल्सो दे कैन असेस इफेक्टिव एजुकेशनल मटेरियल्स। तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट में तो टिक कर दिया, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट जो है गलत है, तो 1 3 4, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज एनईपी 2020 डिफाइन एज द कॉर्नरस्टोन? कॉर्नरस्टोन मींस बेसिकली बेस एक है क्या ऑफ ऑल एजुकेशनल डिसीजंस, क्या बेस है, फाउंडेशन क्या है? इंटरनल रैंकिंग्स, फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। बी, ऑप्शन बी जो मेन बेस है, जो मेन फाउंडेशन है, फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। अभी हम सेपरेट नहीं करेंगे कि ये गिफ्टेड है और ये सपोर्टिव लर्नर्स है, ये डिसेबल है, हैंडीकैप्ड, ये नहीं होगा। नेक्स्ट इक्विटी, इक्विटी मींस जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, कि जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, ठीक है, और जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप है, वहां से जो चाइल्ड आते हैं, ओके, उनको भी सेम एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन एक पब्लिक सर्विस हो गया। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज राइट टू गेट द हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड इक्विटी शुड बी मेंटेन्ड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अगेन द लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलेटेड क्वेश्चन है, मेंशन्ड इन द पॉलिसी एम्स टू एंश्योर increased bureaucracy and government control, integrity and transparency while encouraging innovation through autonomy, strict physical monitoring of every classroom, high fees for private philanthropic institutions. Option B, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्स टाइट, लाइट बट टाइट, टाइट मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्स को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा, उसमें इंटीग्रिटी रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा और एफिशिएंटली रिसोर्स को यूटिलाइज किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सेफ एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, ओके, और उसमें वाइड लर्निंग इट मींस एक्सपीरियंस रहेगा। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन हम मानेंगे। और वो भी टाइट पॉलिसी में क्या, लाइट बट टाइट में क्या एम्फसाइज किया गया, मैं बताया था, इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। तो टीचिंग फैकल्टीज को ऑटोनॉमी स्टेटस दिया जाएगा, गवर्नेंस, गवर्नमेंट अच्छा पॉलिसीज लाएगा, ओके, तो तब स्कूल का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी भी स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
ठीक है। और एम्पावरमेंट मीन्स एक्चुअली एवरी फील्ड में एक्चुअली द इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली देयर इज इट मीन्स प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल फैसिलिटीज इट मीन्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। क्वेश्चन 30, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी who is considered to be at the heart of the learning process? Heart of the learning process means teachers and faculty. अब प्रिंसिपल्स देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो एनईपी का, टीचर्स एंड फैकल्टी दे आर द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, दे प्ले द पाइवोटल रोल, दे प्ले द मेन रोल, ओके, फॉर द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, ओके, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, यहां पर हम देखेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे, जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। ए गुड इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरीली डिफाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू मेंटेन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दैट सेपरेट्स हाई परफॉर्मेंस फ्रॉम अदर्स। कोई सेपरेशन नहीं रहेगा। अभी मैं बोला इक्विटी मेंटेन होगा, हम ये नहीं बोलेंगे गिफ्टेड और सपोर्टिव लर्नर्स, इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे कि नॉर्मल चाइल्ड, डिसेबल चाइल्ड, उनको सेपरेट कर देंगे। ये इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटी को एम्फसाइज किया गया, तो ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट। प्रोवाइडिंग ए वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड ए सेफ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट इज ए कोर गोल। इस गुड इंस्टीट्यूशन में वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस चाहिए और एक सेफ एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट चाहिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेकेंडरी टू एकेडमिक करिकुलम एंड डज नॉट नेसेसरीली नीड टू बी अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स। ये गलत है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुड इंस्टीट्यूशन में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम एम्फसाइज करेंगे एकेडमिक करिकुलम को, उतना एम्फसाइज करेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन टू एंश्योर स्पेशलाइज्ड फोकस। कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं रहेगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक क्लियर एक सेंटेंस है, उसमें क्लियरली आपको मैं बता देता हूं। जो गुड एजुकेशन में देयर मस्ट बी सीमलेस इंटीग्रेशन अमोंग ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीमलेस इंटीग्रेशन, एक अच्छा, दे आर इंटीग्रेटेड अमोंग ईच अदर, कोई सेपरेशन नहीं रहेगा। सिमिलरली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में इंटीग्रेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहेगा, तो चाइल्ड का जो एजुकेशन है वो कंटिन्यूअस होता जाएगा। ऐसा कोई बाउंड्री, स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन इनकरेक्ट है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा आपको बता देता हूं गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें हम स्टूडेंट्स को वेलकम करेंगे। फर्स्ट वन, वेलकम द स्टूडेंट। सेकेंड वन, केयर द चाइल्ड। ठीक है। थर्ड वन, सेफ एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरमेंट, क्रिएट सेफ एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरमेंट। नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑफर्ड, वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस कंड्यूसिव टू लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसमें रहेगा कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में प्रॉपर इंटीग्रेशन रहेगा एंड कोऑर्डिनेशन रहेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सीमलेस इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस all institutions and across all stages of education। all stages of education में एक प्रॉपर सीमलेस कोऑर्डिनेशन रहेगा और इंटीग्रेशन रहेगा। तो चाइल्ड जिस फेज में जो लर्न करना है वो करता जाएगा। जैसे वो फाउंडेशन स्टेज टू प्रिपेरेटरी टू मिडिल टू सेकेंडरी जब जाए हायर सेकेंडरी, उसमें वो नॉलेज गेन करता जाएगा, ओके, एक्वायर करता जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये चीज को एक गुड इंस्टीट्यूशन में एम्फसाइज किया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं अच्छे से पॉइंट को एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 द सीमलेस इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन मेंशन्ड refers to which of the following? The standardization of fees across all private and public institutions, the synchronization of curriculum and transitions across all institutions and stages of education, a centralized management system where one principal governs multiple local schools, the elimination of local context to ensure a singular
नेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंक्रोनाइजेशन, जो सीमलेस इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन रहेगा, जो इंस्टीट्यूशंस का जो सिलेबस होगा वो सेम रहेगा, इसमें कोई ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं होगा। ओके, और कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। एक नोडल स्कूल रहेगा, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन होगा, और वहां पे जो नियर बाय नेबरिंग स्कूल्स है वो जा उसका स्टूडेंट जाकर वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। सिलेबस सेम रहेगा। ओके, सीमलेस इंटीग्रेशन, सिलेबस सेम रहेगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मींस एक नोडल स्कूल में 10 स्कूल्स रहेंगे, वो एवरी टाइम जो डिबेट है, कोई सेमिनार है, कोई सिंपोजियम है, कोई एग्जीबिशन ऐसे होगा, और सभी एक साथ सभी स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और उसमें सिमिलरली स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताया था जैसे स्टैंडर्ड 1-2 है फाउंडेशन स्टेज, बाल वाटिका 3 to 8 बाल वाटिका, एंड स्टैंडर्ड 1-2 वो फाउंडेशन है। प्रिपेरेटरी स्टैंडर्ड 3-4-5 प्रिपेरेटरी स्टेज है। फिर आपका मिडिल स्कूल 6-7-8, फिर आपका सेकेंडरी 9 to 12। तो इस तरीके से करिकुलम को सेट किया जाएगा, एक सिंक्रोनाइज, जो स्टूडेंट है वो लर्न करता जाएगा, फेज बाय फेज वो लर्न करता जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा सेपरेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 33 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द dual obligation of an educational institution according to the provided text to provide high quality infrastructure while maintaining low operational cost, to foster a nurturing internal environment while ensuring external systematic alignment, to prioritize academic excellence over the emotional well-being of the student, to offer a wide range of learning experiences while limiting access to specialized resources। डुअल ऑब्लिगेशन में आप ऑप्शन बी देखिए, एक है हम इंटरनल एनवायरनमेंट को नर्चर करेंगे, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्कूल में ये इनसाइड एनवायरनमेंट है। और सेकेंड वन, एक्सटर्नल सिस्टमेटिक अलाइनमेंट, बाहर में भी हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। जैसे जो पॉइंट रहा सीमलेस इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, प्रॉपर इंटीग्रेशन रहेगा अमंग द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वही है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव हुआ, और हम जैसे मैं बताया एक नोडल स्कूल, उसमें कंपटीशन होगा, सभी वो एक नोडल स्कूल में एक नोडल स्कूल हेड रहेगा 10 स्कूल्स का, वो कंपटीशन सभी स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, वही तो है इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, what is identified as a prerequisite for a stimulating learning environment in the context of institutional resources? Access to high-end digital technology for every student, the presence of a coaching culture to prepare for competitive exams, good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning, a strict regulatory framework that limits teacher autonomy। ऑप्शन सी में बताया था, एक गुड इंस्टीट्यूशन। गुड इंस्टीट्यूशन किसको हम बोलेंगे, उसमें पॉइंट था गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस कंड्यूसिव फॉर लर्निंग। अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस रहेगा जो कंड्यूसिव टू लर्निंग, ऑल फैसिलिटीज रहेगा स्कूल्स में, तो तब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नॉलेज एक्वायर करेंगे। ठीक है, और वो इनोवेटिव हो जाएंगे, उनका क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, जो एरिया है उसको वो डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो बताया था एक गुड इंस्टीट्यूशन का, जैसे बताया था वेलकम करेंगे बच्चों को, केयर करेंगे, और एक सेफ एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहेगा, ऑफर करेंगे उनको, अच्छा टीचिंग फैकल्टी रखेंगे। तो अब जो टीचिंग फैकल्टीज रहेगा तो ऑटोमेटिकली वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाएगा स्टूडेंट के लिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस रहेगा। ठीक है, कंड्यूसिव रहेगा और बेसिकली फेवरेबल रहेगा टू लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टीचर्स इन एनईपी 2020। टीचर्स के ऊपर है। टीचर्स आर कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, करेक्ट है। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स इज एम्फासाइज्ड, सीपीडी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो ट्रेनिंग लेते रहेंगे, ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी दीक्षा पोर्टल है,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और ऑफलाइन में भी ट्रेनिंग सीबीएसई एनसीईआरटी देते हैं। तो सीपीडी 50 आवर्स एवरी ईयर, ओके, 50 मिनिमम 50 आवर्स करना ही करना है, ओके, ट्रेनिंग। टीचर्स ऑटोनॉमी इज डिस्करेज्ड, ये नहीं, टीचर्स ऑटोनॉमी एनकरेज्ड, उनका ऑटोनोमस स्टेटस हम देंगे टीचर्स को। टीचर ऑटोनॉमी इज डिस्करेज्ड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, regarding the regulatory framework of the education system, consider the following statements regarding the regulatory framework of the education system। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। द पॉलिसी प्रपोजेस ए हेवी एंड रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन टू एंश्योर दैट एवरी इंस्टीट्यूशन follows the same rigid curriculum। No, curriculum must be flexible one, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। The term tight in the framework refers to ensuring integrity, transparency and resource efficiency, ठीक रहेगा। और जो रिसोर्स, जो फाइनेंशियल रिसोर्स रहेगा उसमें इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी रहेगा, जिसको ऑडिट को डिस्क्लोज किया जाएगा और पब्लिक को भी डिस्क्लोज किया जाएगा। पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ऑडिट्स आर द प्राइमरी मैकेनिज्म्स यूज्ड टू एंश्योर द सिस्टम्स अकाउंटेबिलिटी, करेक्ट है। द पॉलिसी डिस्करेजेस, ये भूल हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज टू मेंटेन ए स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड, गलत है। इसमें लाइट बट टाइट में भी क्लियरली मेंशन है कि एनकरेजिंग इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, एनकरेजिंग इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ आइडियाज कैसे रहेगा ना, थ्रू ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाएगा टीचर्स को, गुड गवर्नेंस रहेगा एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो क्लियर है, इनकरेक्ट है फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन द फ्रेज लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्हाट इज द लाइट एस्पेक्ट? लाइट एस्पेक्ट को हम कैसे समझेंगे? टाइट एस्पेक्ट को तो हम समझ लिया, स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल ऑडिट्स, innovation, autonomy and out of the box ideas, reducing the number of teachers in institutions, limiting the use of technology in rural areas, option B, innovation, autonomy and out of the box ideas, ये लाइट में रहेगा, लाइट एस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 38, how does NEP 2020 intend to ensure the integrity and transparency of the education system through daily government inspections of classrooms, through audit and public disclosure, by banning private philanthropic participation, by centralizing all decision making in a single office? इसमें थोड़ा मैं डार्क में दे दिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होगा, उसमें इंटीग्रिटी रहेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगा, तो उसका अकाउंटेबिलिटी को चेक करेंगे, ऑडिट टीम चेक करेगा और पब्लिक को भी डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है, वही टाइट पॉलिसी में आता है। लाइट में क्या है, एनकरेजिंग इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, तो टीचर्स को हम ऑटोनॉमी स्टेटस देंगे, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज अच्छा रहेगा, और एम्पावरमेंट करेंगे। जो एम्पावरमेंट का बात आता है, जो रिसोर्सेस कंड्यूसिव टू फॉर लर्निंग, जो भी रिसोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, ओके, वो कंड्यूसिव टू लर्निंग के लिए बहुत इजी हो जाएगा, स्टूडेंट्स को जो भी फैसिलिटी चाहिए सब ओके मिलेगा, ठीक है, तो वही एम्पावरमेंट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विजन, अगेन विजन के ऊपर आया, देखेंगे। द पॉलिसी एनविजन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, करेक्ट है। द करिकुलम एम्स टू डेवलप ए डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, करेक्ट है। द पॉलिसी फोकसेस ऑन डेवलपिंग प्राइड in being Indian only in terms of thought and intellect excluding deeds, ये गलत है, वो दिया है एक क्लियरली, आप देख लीजिए, प्रिंसिपल्स को देख लीजिए, उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो यहाँ पर जो हम प्राइड फील करेंगे कि मैं इंडियन हूं, उसमें नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ थॉट, इंटेलेक्ट एंड डीड्स तीनों रहेगा, बट एक्सक्लूडिंग डीड्स दिया है, तो ये गलत है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तो जो आता है उसको थोड़ा अच्छे से चेक करना है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इंक्लूडिंग डीड्स। वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स इज टू मेक इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ये करेक्ट है, तो उसमें ओनली थर्ड करेक्ट पूछा है, तो वन फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें दिया है एक मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं, आपको पता चल जाएगा। द विजन ऑफ द पॉलिसी, जो विजन में आता है पॉलिसी का, इज टू इंस्टिल अमंग द लर्नर्स ए डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन। हम इंडियन होने का प्राइड फील करेंगे, नॉट ओनली इन थॉट, थॉट में ओनली नहीं, बट ऑल्सो इन स्पिरिट, इंटेलेक्ट एंड डीड्स। तो हम जो खुद को हम इंडियन कह के, वो एक डीप रूटेड सेंस होना चाहिए कि जस्ट आई एम द इंडियन, ओके, सो आई फील प्राउड दैट आई एम बीइंग इंडियन। सो हमारा ये ओनली थॉट प्रोसेस में नहीं रहेगा, नॉट ओनली इन थॉट बट ऑल्सो स्पिरिट में रहेगा, इंटेलेक्ट नॉलेज में रहेगा एंड डीड्स में रहेगा। ठीक है, तीनों में रहेगा। तो ठीक है, तो इसमें इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, regarding the global citizen in NEP 2020, which of the following statements is or are correct? The policy aims to develop dispositions that support human rights and sustainable development. ठीक है, global well-being is a core component of the values the policy intends to instill. correct है. The vision is rooted in Indian ethos but aims for a sustainable transformation of the global ecosystem. okay. ऑप्शन 3। तो क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी होगा। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उसमें क्लियरली मेंशन है आपको एक ग्लोबल सिटीजन, ओके, तो ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल सिटीजन, इसमें वो दे दिया कि ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिविंग राइट and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen. ये clearly दे दिया। Develop knowledge, skills, values, disposition that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen. तो तीनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 40। अब विजन आप देखिए, पॉलिसी का विजन के ऊपर देखिए। द विजन यहां पर सेम विजन जो है एनईपी 2020 का, उसी रिलेटेड क्वेश्चन है। द विजन ऑफ बीइंग ए ग्लोबल सिटीजन इन द एनईपी 2020 इंक्लूड्स ए रेस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिविंग, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल वेलबींग, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। मैं अभी बताया था ए ग्लोबल ट्रू ग्लोबल सिटीजन। तो ट्रू ग्लोबल सिटीजन होने के लिए कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, फर्स्ट वन कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, सेकेंड वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिविंग, थर्ड वन ग्लोबल वेलबींग, ये तीनों के ऊपर एक्चुअली रिफ्लेक्ट किया गया है ये ट्रूली ग्लोबल सिटीजन। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू द विजन करिकुलम एंड पेडागोजी मस्ट डेवलप ए बॉन्डिंग विथ वंस country along with a conscious awareness of roles and responsibilities in a changing world, only local commercial needs, career paths in foreign countries, ancient history exclusively. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। तो हमारा जो दिया है, जो वो विजन में ये बोल रहा है, जो हमारा करिकुलम और पेडागोजी को हम जो सेट किया जाएगा उसमें मस्ट डेवलप एक बॉन्डिंग रहे, बॉन्डिंग विथ वंस कंट्री, अलोंग विथ रहेगा कि खुद का रोल क्या है। एक जो चाइल्ड है, एक स्टूडेंट है, वो खुद को पूछेगा मेरा रोल क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये चेंजिंग वर्ल्ड में। तो इस तरीके का करिकुलम पेडागोजी रहेगा। तो वो खुद को द चाइल्ड आस्क हिमसेल्फ कि व्हाट इज माय रोल इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड, कि व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। तो उस तरीके का बॉन्डिंग होना चाहिए। ओके, सो आई फील प्राउड एज बीइंग इंडियन, आप समझ रहे कि नहीं। तो ये जो बॉन्डिंग है विथ वंस कंट्री, तो उस तरीके से करिकुलम पेडागोजी को सेट किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी 2020। करेक्ट को हम डिटेक्ट करेंगे। हाई क्वालिटी एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, ये तो करेक्ट है। हाई क्वालिटी एजुकेशन बाय 2040 इंडिया वुड बी द नंबर 1 नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। NEP 2026 to make India a global knowledge superpower, करेक्ट है। Access to education is limited only to citizens of India, ये गलत है। क्लियरली ऑल लर्नर्स दिया है। जो 2040 में
हम एक ग्लोबल सुपर पावर होने के लिए जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, फॉर ऑल लर्नर्स, नॉट ओनली इंडियंस, ऑल्सो फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉर ऑल लर्नर्स, एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस, इसको एम्फासाइज किया है, एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय 2040। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट पूछा है मींस 1 and 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, consider the following statements about national identity in NEP 2020। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। द पॉलिसी सिक्स टू इंस्टिल प्राइड इन बीइंग इंडियन इन थॉट, स्पिरिट, इंटेलेक्ट एंड डीड्स, करेक्ट है। हम जो प्राइड फील करेंगे कि मैं इंडियन हूं, हमारा थॉट में रहेगा, हमारा जो स्पिरिट में रहेगा वो वर्क में दिखाई देगा, कि हमारा ये स्पिरिट है कि आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई लाइफ, ओके, फॉर द कंट्री। I am ready to sacrifice my life for the country, but I fight for the country. Intellect, knowledge में, my country is superpower. I am so much knowledgeous one. I play the dominant role not only in India, across the world. And deeds जो है confidence. Okay, deeds जो है confidence है. Deeds किसको बोलते हैं? Courage, resilience, ये words आता है deeds में. तो I am resilient one to protect my country. Okay, I am very much courageous, ओके, टू प्रोटेक्ट माई कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। तो ये सब आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। प्राइड इन इंडियन आइडेंटिटी इज लिमिटेड टू कल्चरल एस्पेक्ट्स, नो, नॉट कल्चरल एस्पेक्ट्स। प्राइड इन इंडियन आइडेंटिटी इज लिमिटेड टू कल्चरल एस्पेक्ट्स, ये गलत है। ओके, तो उसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेशनल प्राइड इज अलाइंड विद ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल प्राइड इज अलाइंड विद ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहां पर देखिए करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। यहां पर देख लीजिए, ये स्टेटमेंट 1 है, ये है स्टेटमेंट 1, ठीक है, ये है स्टेटमेंट 2, सेकेंड स्टेटमेंट ये है स्टेटमेंट 2, और ये स्टेटमेंट 3 है, छोड़ दिया नंबरिंग, 3 स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एनईपी 2020 यूजेस एजुकेशन एज ए मींस टू ट्रांसफॉर्म भारत सस्टेनेबली, करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडियन एथोज एंड ग्लोबल आउटलुक आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये गलत है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं है। जो हमारा जो एथोज है, इंडियन एथोज है, जैसे जो कल्चर, एथोज मीन्स कल्चर, वैल्यूज, एजुकेशनल वैल्यूज, जो आवर कल्चर, आवर हेरिटेज, आवर मोन्यूमेंट्स, आवर टेम्पल, ठीक है, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो है ग्लोबल आउटलुक सेम रहेगा, म्यूचुअली माने इंटीग्रिटी रहेगा उसमें। ग्लोबल आउटलुक, हमारा जो ग्लोबल आउटलुक रहेगा, हमारा इंडियन एथोज, इसमें हम क्या है, जो वैल्यूज ऑफ एजुकेशन है, जो वैल्यूज है, जो हमारा कल्चर को हम डिफरेंट कल्चर से, हेरिटेज है, मोन्यूमेंट्स है, टेम्पल्स है, सो डिफरेंट जो एथोज है, वैसा ही हमारा ग्लोबल आउटलुक रहेगा आउटसाइड में। तो जैसे हम रेस्पेक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे जो चाहे जो वैल्यूज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे हमारा कल्चर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमारा हेरिटेज को, आउटसाइड आउटलुक भी वही रहेगा। तो ये जो म्यूचुअल गलत है, एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा, ओके, वो इंटीग्रिटी रहेगा, इंडियन एथोज एंड ग्लोबल आउटलुक। रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप इज ए की आउटकम ऑफ एजुकेशन अंडर एनईपी 2020, तो ये तो थर्ड करेक्ट है। तो यहां पर जो है फास्ट थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें नंबरिंग में थोड़ा भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अंडर द न्यू पॉलिसी द स्कूल स्ट्रक्चर ट्रांजिशंस फ्रॉम 10+2 to 5+3+3+4, ये करेक्ट है, क्योंकि फाउंडेशन स्टेज है 5, आप सुन लीजिए ठीक से। फाउंडेशन स्टेज में आपका जो एजुकेशन सिस्टम आ गया 3 to 18 ईयर्स, फाउंडेशन आएगा 3 to 8, इसमें आंगनबाड़ी रहेगा 3 to 6, आंगनबाड़ी 3 to आंगनबाड़ी, बाल बाटिका सेम थिंग है, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल बाटिका, प्री स्कूल, ये 3 to 6, स्टैंडर्ड 1 2 रहेगा, तो 3, ये फाउंडेशन स्टेज है। नेक्स्ट वन 8 to 11, 3 4 5, ये स्टेज को फाउंडेशन बोलेंगे 3 to 8 ईयर्स, ओके। आंगनबाड़ी, बाल बाटिका की प्री स्कूल टू स्टैंडर्ड 2, 8 to 11 जो एज है, 8 to 11 ईयर्स, ये जो एज है, प्रिपेरेटरी स्टेज, ये स्टैंडर्ड
3 to 5, स्टैंडर्ड 3 to 5 मैं इसमें थोड़ा मेंशन कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो 5 है इसमें बाल बाटिका रहेगा प्लस स्टैंडर्ड 1 एंड 2। ये जो एज ग्रुप रहेगा इसमें रहेगा 3 to 8 ईयर्स, यही है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 3 to 8 ईयर्स। बाल बाटिका प्री स्कूल और जो आंगनबाड़ी 3 ईयर्स रहेगा, 3 to 6 स्टैंडर्ड 1 एंड 2 रहेगा। ये इसको फाउंडेशन स्टेज हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट जो 3 आएगा ये आएगा प्रिपेरेटरी, इसमें आएगा स्टैंडर्ड 3 to 5 आएगा और एज ग्रुप रहेगा 8 to 11 ईयर्स और इसको हम बोलेंगे प्रिपेरेटरी स्टेज। ठीक है, प्रिपेरेटरी स्टेज, क्लियर। नेक्स्ट एक 3 आएगा, नेक्स्ट जो 3 आएगा इसको देख लीजिए। नेक्स्ट जो 3 आएगा इसमें आ जाएगा स्टैंडर्ड 6 to 8, एज ग्रुप रहेगा 11 to 14 ईयर्स, 11 to 14 ईयर्स और ये मिडिल स्कूल स्टेज आएगा, ये मिडिल स्कूल स्टेज आएगा। ठीक है, और लास्ट जो आएगा जो 4 है, ठीक है, सेकेंडरी स्टेज आएगा। ये बेसिकली स्टैंडर्ड 9 to 12, एज ग्रुप 14 to 18 ईयर्स और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। मगर पहले जो था 2, जो प्रीवियस पॉलिसी में था 2 स्टेजेस था। एक स्टेज था एज 6 to 16 अप टू स्टैंडर्ड 10। सो स्टैंडर्ड 6 जब एज 6 ईयर था तब स्टैंडर्ड 1, तो स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट हो रहा था, 6 to 16 देन 16 to 18, 16 to 18 आपका था 11 12, यही था, 2 स्टेज था, अभी 4 स्टेज हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द न्यू स्ट्रक्चर कवर्स चिल्ड्रेन फ्रॉम एज 5 to 18, ये गलत है, 3 to 18, ये होना चाहिए 3 to 18 क्योंकि बाल बाटिका प्री जो स्कूल है आंगनबाड़ी है वो स्टैंडर्ड जब 3 ईयर होगा चाइल्ड को वो ज्वाइन करेगा। क्लास 1 विल नाउ बिगिन एट एज 3 अंडर द न्यू, नहीं क्लास 1 जो स्टार्ट होगा वो 6 ईयर्स में स्टार्ट होगा। ये 3 8 एज 3 ये गलत है, जो स्टार्ट होगा 6 ईयर में स्टार्ट होगा क्लास 1। द 5 इन द न्यू स्ट्रक्चर इंक्लूड्स 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल आंगनबाड़ी, ये ठीक है। तो ये जो है 3 to 8 ईयर्स में बोला था, इसमें 3 to 6 रहेगा आंगनबाड़ी बाल बाटिका और 6 to 8 रहेगा स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2। तो स्टैंडर्ड 1 एंट्री रहेगा 6 ईयर। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इनकरेक्ट आप देख लीजिए, सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, सेकेंड थर्ड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। द 10+2 स्ट्रक्चर करेंटली इंक्लूड्स ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें नहीं था ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। करेंटली द 10+2 स्ट्रक्चर करेंटली इंक्लूड्स, ठीक है, करेंटली इंक्लूड्स नहीं, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ECCE ये स्टार्ट हो रहा है 3 to 8 ईयर्स ना, मैं बोला अभी 3 to 8 ईयर्स ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें जो फर्स्ट 3 ईयर्स रहेगा बाल बाटिका रहेगा, देन स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 रहेगा। ये नहीं था 10+2, क्योंकि 10+2 में इसमें दो स्टेज था। एक था कि 6 to 16 ईयर्स एज था, अप टू स्टैंडर्ड 10 था, इसमें स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 10, और एक एज था 16 to 18 ईयर्स था, 11 12, 2 स्टेज था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूडिंग द 3 to 6 एज ग्रुप इज टू प्रमोट ओवरऑल लर्निंग एंड वेलबींग, करेक्ट है। द न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस 5 + 3 + 3 + 4। तो उसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। 48 को देखिए, व्हाट इज द स्पेसिफिक एम ऑफ इंक्लूडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन द न्यू फ्रेमवर्क। ये जो न्यू फ्रेमवर्क में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को क्यों ज्यादा इंक्लूड किया गया? टू एंश्योर चिल्ड्रन फिनिश स्कूल बाय एज 16, टू स्टैंडर्डाइज बोर्ड एग्जाम्स फॉर 3 years old,
to promote better overall learning, development and well-being, to replace the need for secondary education. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू प्रमोट बेटर ओवरऑल लर्निंग, डेवलपमेंट एंड वेलबींग। इसीलिए ईसीसी को इंक्लूड किया गया न्यू फ्रेमवर्क में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, in the new 5+3+3+4 structure, how many years of schooling occur before a child enters class 1? Before class 1 3 years है, क्योंकि आप देखिए फाउंडेशन स्टेज 3 to 8 years है, इसमें फास्ट 3 years 5 years हो गया। फास्ट 3 years रहेगा आंगनबाड़ी व बाल बाटिका व प्री स्कूल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 1 के पहले, और स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 रहेगा इसमें। तो इसमें फास्ट 3 years बाल बाटिका, देन रहेगा स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2, ठीक है। और स्टैंडर्ड 1 जो एंट्री एज रहेगा 6 year, और बाल बाटिका में एंट्री एज रहेगा 3 years, अभी जो स्कूल एज रहेगा 3 to 18 years रहेगा, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन स्टेज के ऊपर पूछा है। द फाउंडेशन स्टेज, द फर्स्ट 5 years ऑफ द मॉडल इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? 3 years ऑफ प्री स्कूल प्लस क्लासेस 1 and 2, क्लासेस 1 to 5, 5 years आंगनबाड़ी ओनली, 2 years ऑफ प्री स्कूल प्लस क्लासेस 1, 2 and 3। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट 3 years रहेगा जो फाउंडेशन स्टेज में, जो मैं बताया था 3 to 8 years, इसमें फर्स्ट 3 years प्री स्कूल रहेगा, बाल बाटिका जिसको हम प्री स्कूल बाल बाटिका आंगनबाड़ी बोलते हैं, और देन क्लासेस 1 and 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये 50 क्वेश्चंस था, फिर आप वेट कीजिए मेरा सीरीज 2 को, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, ओके, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।